मकसद क्या होता है फैमिली का? द बेसिक पर्पस ऑफ द फैमिली इज टू सर्व एज द सर्वेंट्स, ठीक है। वो हमारे लिए सर्वेंट्स के तौर पे काम करते हैं। दे हेल्प अस गेट नॉरिश्ड, they help us develop our personality, they help us learn new cultural norms and values. These help us in understanding the society. These convert us into from a biological being to a social being. So it is very important that family work as a servant, ठीक है, क्योंकि वो हमारी तमाम नीड्स को, हम हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करती है, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड ऑल अदर फंक्शंस दैट वी हैव, जिसको हम आगे जाकर मजीद भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। As far as definitions are concerned, a family is a group of persons united by the ties of marriage, ठीक है। फैमिली क्या है? फैमिली एक ग्रुप है पर्सन्स का, और ज्यादातर वो जो है ना उनके दरमियान जो एसोसिएशंस होती हैं या जो उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो तमाम किस बेसिस पर होते हैं? या तो वो मैरिज की बुनियाद पर होते हैं, या वो ब्लड की बुनियाद पे होते हैं, या वो एडॉप्शन की बुनियाद पे होते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल टू कपल, ठीक है, व्हेन दे गेट मैरिड, तो दे मेक व्हाट? दे मेक अ फैमिली। सिमिलरली ब्लड रिलेटिव्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, जब वो आपस में इकट्ठे होते हैं, किसी भी सोसाइटी में वो रहते हैं, किसी भी फैमिली में वो रहते हैं, सो दे मेक व्हाट? They make the family. In the very same way, adoption. There is adoption is a term that is used for adopting new family members without having blood relationship with anyone. ठीक है, तो फैमिली किसी भी ग्रुप का मेंबर्स का ग्रुप हो सकता है। they might be united by the ties of marriage, they might be having blood relation with each other, they might be having the relationship of adoption, ठीक है, एंड दे शुड बी कंसिस्टिंग अ सिंगल हाउस होल्ड, और ये सिंगल हाउस होल्ड में रहते हो। यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि सिंगल हाउस होल्ड पे यहाँ से मुराद क्या है। व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी, रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में सेंसस हुआ, और वो सेंसस के दौरान आपसे मुख्तलिफ डेटा कलेक्ट करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे आस्क यू दैट हाउ मेनी किचन्स डू यू यूज। फैमिली की जो डिवीजन सोशियोलॉजी में की जाती है, या जो सोशियोलॉजी की बुनियाद पर या इसके नॉलेज की बुनियाद पर की जाती है, दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ किचन। For example, if at your home you have got one kitchen, it means you will be considered a one family. But if there are two kitchens used by different families or different group of people, so we may call them what? That they are what? Two families. ठीक है, तो they should be living in a single household. They should be interacting and intercommunicating with each other, ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टेड रोल्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ कॉमन कल्चर, जिसकी वजह से वो अपने कॉमन कल्चर को मेंटेन करते हैं। तो बर्गीज एंड लॉक ये कहता है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि मैरिज की बुनियाद पर इकट्ठे हो सकते हैं, वो ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर इकट्ठे हो सकते हैं, दे शुड हैव एडॉप्शन, इन तीनों में से कोई भी हो, दे कैन मेक अ फैमिली, and they should be living in a single household. They should be interacting with each other. They should be communicating with each other in their respective roles. For example, a mother and a son, they've got different roles. They should be talking to each other, they should be behaving with each other, they should be following each other in their respective roles, ठीक है। Due to this, what it leads to? It leads to the creation or and maintenance of a common culture. ये common culture की तरफ हमें चलाता है। So this is basically what this is a family. फिर उसके बाद हम देखते हैं the new definition. Family may be defined as a biological or social unit that is composed of husband, wife, and their children. So इसको हम Merrill has defined it in a very concise and precisely. ठीक है, he says that husband, wife, and their children, those who live in a particular social unit in a particular territory, it makes a family. ठीक है, then later on it is discussed that family is a kinship grouping which provides rearing of children and other human needs. Family क्या है? ये एक रिलेशन का ग्रुपिंग है, रिश्तों की जो है ना वो ग्रुपिंग है, और इसमें होता क्या है? रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की परवरिश की जाती है, और तमाम जो इंसानी जरूरियात है वो एक दूसरे की पूरी की जाती है। तो हॉटन एंड हार्ट अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ किनशिप सिस्टम। ये रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन करते हैं, एंड दे फुलफिल ऑल द ह्यूमन नीड्स। आई होप इट्स क्लियर। शैल वी गो अहेड? Okay, now what is the
function and the characteristics of family. Family has got numerous characteristics. Family has got different functions. ठीक है, functions मुख्तलिफ हो सकते हैं. बहुत सारे functions हो सकते हैं. I have written few of them, but it may be extended according to your own thinking, according to your own caliber. It may be extended. The first and the foremost thing is the mate selection या mating relationship. A family begins with marriage. ठीक है, कोई भी family की जो शुरुआत होती है, that begins with marriage. Marriage is an approved social status or role that is considered legitimate. ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी में जब मेटिंग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं वो फैमिली की तरफ से किया जाता है. फैमिली हेल्प यू टू गेट मैरिड एंड फैमिली सपोर्ट यू इन दैट. तो मेटिंग रिलेशनशिप अपने लिए आपके लाइफ पार्टनर्स का इंतखाब करना, दो लोगों का करीब आना, लेजिटिमेट उनका फिजिकल इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होना, सेक्सुअल रिलेशनशिप का होना, that is one of the key characteristics of a family. The second thing is marriage. See, first one was selection of the mate. ठीक है, आपके पार्टनर का सिलेक्शन होता है. आपके फैमिली के रिलेशनशिप्स आप देखते हैं किस किस्म के रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहे होते हैं. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फैमिली. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इज दैट मैरिजेस. Family extends from nuclear family to the joint family and then the extended family through marriages. ठीक है, through intercommunication. They all get together, they all rely on each other, there is a huge dependency. तो मैरिजेस की बुनियाद पर उनके रिलेशनशिप्स मजीद स्ट्रांग होते हैं और उसी तरह फैमिली के फंक्शंस और फैमिली के जो नंबर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंस, वो एक्सटेंड होते जाते हैं और उनमें चेंजेस आती जाती हैं. Then the most important characteristics of family is it provides you a nomenclature. Nomenclature basically means identity. फैमिली हमें क्या करती है, वो एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, वो हमें एक नेम प्रोवाइड करती है, वो हमें एक स्टेटस, एस्क्राइब्ड स्टेटस प्रोवाइड करती है. कि फॉर एग्जांपल if you belong to any particular country, if you belong to particular caste, if you belong to particular sect, if you belong to particular religion, these all identities are given from the family. ठीक है, तो इसलिए it is very important that one should have a family. And without family, if someone does not have any family, so he will be nameless, he will not be having any identity. So therefore it is very significant that one should have a very identified and very clear ancestry through family. Then we have got need satisfaction. Another important point is, for example, all the society, okay? Since the society is always busy in helping and supporting the individuals, so it is very important that whatever the social needs arise in our society, those all are done on the basis of family. ठीक है, family क्या करता है, family support करता है, family ही guide करता है, family direct करता है. तो इसकी वजह से जो भी needs होती हैं उन सबको कैरी आउट किया जाता है, उन सबको कंटिन्यू किया जाता है. तो जो भी इंसान की नीड्स होती हैं, जो भी सोसाइटी की नीड्स होती हैं, दोज ऑल आर डिपेंडेंट इंटायरली ऑन फैमिली. तो जो जिस किस्म की भी नीड्स होती हैं, जिस किस्म की भी डिमांड्स होती हैं, जिस किस्म, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एज पे डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फेक्शन की जरूरत पड़ती है. सो ड्यू टू दिस नीड सेटिस्फेक्शन, फैमिली इज कंसिडर वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूशन. फिर कॉमन हैबिटेशन, कि एक आम हैबिटाट प्रोवाइड किया जाता है. हैबिटेशन मींस रेजिडेंस. कोई भी फैमिली हो तो उसके जो है ना कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो आपको एक कॉमन हैबिटेशन प्रोवाइड करता है, कॉमन जगह प्रोवाइड करती है जहां पर आप सारे फैमिली मेंबर्स एक ही जगह पर मिलकर रहते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन पर्सन शुड हैव कॉमन हैबिटेशन एंड इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू family. So if you have got family, you will have the common habitation where you all will be living together, and if you do not have a family, absolutely you will be just roaming here and there. So these were the some characteristics. Besides these, आप characteristics के family में ये भी डाल सकते हैं कि it helps in personality development, it helps us in socialization, it helps us in understanding each other, it helps us in doing all the relevant activities. ठीक है. So this is very important. Then we shall move towards if you have understood the characteristics of family, then we shall be moving ahead, because types of family is something very important, and here conceptual clarity is required. So please drop me your messages if you have understood the characteristics of family.
Okay, types of family. While discussing this, it is very important that you should be noting it down. ठीक है, आप बेशक इसके स्लाइड्स की बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप इसको नोट डाउन करें, because I have written it very precisely. I will be explaining it, and it is very important that you may know the types of families. ठीक है, so everybody should be getting ready and should be noting it down. So the first one is on the basis of residence. Family की types मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेजिडेंस की बुनियाद पर फैमिली को किन किन टाइप्स पे डिवाइड करते हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट, यहाँ पर दो टर्म्स हमारे सामने बार बार इस्तेमाल किए जाएंगे. वन विल बी मेट्री, वन विल बी पैट्री. wherever the word metry will be used, metry means मदर. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो मदर की तरफ से रेफर्ड हो वो मेट्री कहलाएगी. एंड देन इफ एनीथिंग दैट इज रेफर्ड टू फादर, दैट विल बी यूज्ड एज देयर द टर्म पेट्री विल बी यूज्ड. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, आप मेट्री और पेट्री इन दोनों टर्म से वाकिफ हों, so that it may help you out in understanding all the types. I hope it's clear. ओके, द वेरी फर्स्ट वन इज हैबिटेशन. ठीक है, रेजिडेंस की बुनियाद पर. रेजिडेंस की बुनियाद पे क्या है कि आपकी सोसाइटी के मुख्तलिफ टाइप्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज मेट्री लोकल, द सेकेंड वन इज पेट्री लोकल, देन द थर्ड वन इज न्यू लोकल, एंड द फोर्थ वन इज बाय लोकल. When a family lives in the locality of mother, that will be known as matrilocal. ठीक है, for example, a couple gets married, and then एंड रिमेंबर दिस रेजिडेंस जो है ना वो तमाम हस्बैंड की तरफ रेफर करते हैं. ठीक है, उसका वाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, बिकॉज इन पाकिस्तानी सोसाइटी पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं कि गर्ल गेट्स मैरिड टू अ बॉय एंड देन दे मूव टू द बॉयज हाउस. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना अपने जो हस्बैंड होते हैं उनसे आप इनको लिंक करें. नाउ the matrilocal, matrilocal, it means when husband and wife, when they get married to each other, and if they go and live and start living in the in the vicinity, in the residence of the mother of the boy. ठीक है, अगर उनकी लोकेलिटी में जाकर रहेंगे तो उस टाइप ऑफ फैमिली को हम मैट्री लोकल फैमिली कहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल, if my father belongs to Peshawar and my mother belongs to Sindh, and soon after getting married, if I go and settle in Sindh, so my family will be called a matrilocal family. ठीक है, क्या हस्बैंड और वाइफ वो मूव करते हैं अपनी वालदा की रेजिडेंस में और वहां पे अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं. सो दैट इज मेट्रीलोकल. ऑन द अदर हैंड, पेट्रीलोकल, if a couple gets married and they move towards the vicinity, to the locality, to the residence of the husband, ठीक है, और of the father's locality, तो उसको हम पेट्री लोकल फैमिलीज कहते हैं. ठीक है, and then we have got new local. New local, for example, a couple gets married and neither they go to the mother's locality nor to the father's locality, but they go and join themselves and they start spending their life in a very new locality. So that will be known as the new local family. And the last, we shall be having buy local family. Buy local families usually in Pakistani society, those families in which the husband and wives, they belong to different localities. So usually they are buy local because on and off they start moving from one place to another place. For example, ऐसे होता है कि अगर सर्दियों में आप कोयटा में रहते हो और गर्मियों में आप जो है ना किसी दूसरे शहर जाते हो, जो कि आपके जहां पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो या यहाँ पर आपकी जो है ना अदर फैमिली रहते हो. सो दिस काइंड ऑफ फैमिली विल बी नोन एज बाय लोकल फैमिली. Buy local family basically enjoys both the perks and privileges, both the lifestyles of matrilocal as well as the patrilocal. I hope you got it. On the basis of residence, a family is based on four types: matrilocal, patrilocal, new local, and buy local. I hope it's clear to everybody. Shall we go ahead? रेजिडेंस, रिहाइश की बुनियाद पर. ठीक है, अगर
वालिद की रिहाइश पे जाकर कोई फैमिली, नई फैमिली अगर सेटल हो तो उसको हम पेट्री लोकल कहेंगे। अगर वालदा की लोकेलिटी में जाकर या रेजिडेंस में जाकर कोई फैमिली सेटल होती है तो उसे मेट्री लोकल फैमिली कहते हैं। अगर वो दोनों की लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं ऑन एंड ऑफ, कुछ अरसा वालिद की लोकेलिटी में, कुछ अरसा मदर की लोकेलिटी में, तो उसको हम बाय लोकल कहेंगे। या अगर वो इन दोनों को छोड़कर एक नई लोकेलिटी में चले जाते हैं तो उसको हम न्यू लोकल कहते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। If they belong to one family, then absolutely that is patri local. ठीक है, because mother has left her home, her locality and has come to the husband. ठीक है, तो इसलिए अब्बास बलोच that will be patri local. न्यू लोकल यही है, husband and wife start living in a new place. बाय लोकल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस एक शख्स अपनी फैमिली शुरू करता है, ठीक है, उसके उसके वालिद साहब जो है ना, फॉर एग्जांपल सिंध प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं और उसकी वालदा बलूचिस्तान प्रोविंस से ताल्लुक रखती है, तो वो क्या करते हैं, वो गर्मियों में बलूचिस्तान आ जाते हैं और सर्दियों में सिंध की तरफ चले जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली बाय लोकल। हसीना कवल, आई होप यू गॉट इट। मेट्री लोकल, मदर की लोकेलिटी में जाकर सेटल होने को। देन वी हैव गॉट ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री बेसिकली मीन्स व्हाट, कि जिससे आपके एंसेस्टर्स होते हैं, जिससे आपके आबा अजदाद, जिससे आपकी जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके आबा अजदाद, आपके फोर फादर्स जिससे लिंक होते हैं, जिससे आपके शजरा नसब, एंसेस्टर्स कहते हैं आपके आबा अजदाद को, आपके जो बड़े होते हैं। अगर आपकी लाइनेज, आपका शजरा जो है, अगर वो वालदा से लिंक किया जाता है, ठीक है, वालदा की कास्ट से लिंक किया जाता है, वालदा की जो है ना शजर नसब से आपकी फैमिली में आपको लिंक किया जाता है, सो दैट विल बी मैट्रिलिनियल टाइप ऑफ फैमिली। And if your lineage, if your ancestry is linked with your father's caste, with your father's lineage, with your father's ancestry, your family will be considered as patrilineal. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में ज्यादातर आपको आपके वालिद की कास्ट से जाना जाता है, तो ज्यादातर द मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी फैमिलीज आर पैट्रिलिनियल, ठीक है। वेयर एज देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, जैसे हम बिलावल भुट्टो कहते हैं, ठीक है, तो बिलावल ने अपने नाम के साथ अपनी वालदा का जो लाइनेज है, उनकी जो एंसेस्ट्री है वो अपने साथ लगाई है। सो दैट विल बी नोन एज पैट्रिलिनियल टाइप ऑफ फैमिली। आई होप दिस वन इज clear and easy to understand. Shall we go ahead? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, कि आपके फैमिली में अथॉरिटी यानी पावर यानी डिसीजन मेकिंग के इख्तियारात किसके पास हैं, ठीक है। if you're in your family, if your mother holds the power, she has the ability, she has influence over all the decision making, ठीक है, जो मेजर डिसीजंस बनाए लिए जाते हैं, तो अगर वालदा के पास अथॉरिटी है, इख्तियारात है, दैट विल बी नोन एज द मेट्री आर्कल फैमिली। आर्क, आर्क, ARCH, आर्क जब भी कहीं पर आएगा इट मींस समवन हु इज हैविंग द अथॉरिटी। तो मैट्रियार्कल टाइप ऑफ फैमिलीज वो होती हैं जिनमें तमाम जो अथॉरिटी होती हैं वो फीमेल्स के पास होती हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर फैमिली की बात करें तो मैट्रियार्कल फिर वो फैमिली हो जाती है। अगर किसी स्टेट में पूरे खातून के पास जो है ना, मिसाल के तौर पे बरतानिया में देखिए तो क्वीन एलिजाबेथ है या इसी तरह क्वींस वगैरह मौजूद है, अगर उनके पास इख्तियार मौजूद है तो वहां पर हम कहते हैं कि मैट्रियार्की चल रही है, ठीक है। तो मैट्रियार्की फैमिली में भी हो सकती है, किसी कंट्री में भी हो सकती है। सिमिलरली पैट्रियार्की, इफ इन योर फैमिली मेल डोमिनेंट फैमिली इज देयर वेयर मेल्स have the power and they have the authority to make decisions, तो उनको हम patriarchal type of families कहते हैं। I hope you got it. Matriarchal and patriarchal both are clear to you all. Shall we go ahead? It is very important, we need to clear these all because
Once if we move ahead, then reversing back will be quite difficult for us. Bhutto is a caste. Bhutto is a caste or a family name, whatever that you consider, but that is lineage. ठीक है, वो अपने आप कौन से रेफर करता है सीना कवल, so that is a matrilineal type of society. एंसेस्ट्री क्या है कि आप में आप अपने एंसेस्टर्स को, आप अपने आबा और अजदाद को किन के साथ लिंक करते हैं। अगर आप अपने आबा और अजदाद को अपने वालदा के खानदान की तरफ से लिंक करते हैं तो उसको आप मैट्रिलिनियल टाइप ऑफ फैमिली कहेंगे। और अगर आबा और अजदाद यानी खानदान को, हसब नसब को, शजरे को अगर आप वालिद की तरफ से रिलेट करेंगे तो आप उसको फिर पैट्रिलिनियल कहेंगे। पावर एंड अथॉरिटी आगे जाकर हम इस पर पूरे मैक्स वेबर की पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे। पावर एंड अथॉरिटी डिफर, ठीक है, वो कुछ ना कुछ चीजों में डिफर करती हैं। पावर इज समथिंग दैट इज इनफॉर्मल, ठीक है, जो आप बगैर उसके, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लुएंस, ठीक है, पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज की वजह से भी हो सकता है। वेयर एज अथॉरिटी समथिंग लीगलाइज्ड, ठीक है। तो वो आगे जाकर अजमल खान, जैसे हम पढ़ेंगे इसमें मैक्स वेबर की थ्योरीज को पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। On the basis of marriage, now we shall be moving ahead, on the basis of marriage which kind of families are there. uh, the very first one is monogamy. Gamey, Gamy, gamey, wherever the word gamey will be used, it means it will be referring to marriage, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, if any family where usually one marriages take place, so that family will be a monogamous family, ठीक है। monogamous family, mono means one, whereas in a family where more than one marriages take place तो उनको हम polygamous type of families कहते हैं। So monogamous and polygamous. I hope it is clear to you all. It's all about the trend, it's all about the culture, it's all about the monogamous families are those families where we have got one marriages. Like for example, the trend of one marriage exists in that particular family. Whereas those families where more than one marriages, like two marriages, three marriages, four marriages take place, that family will be known as polygamous families. Okay. Zaman, is it clear? Okay. Then on the basis of individuals, on the basis of numbers, ठीक है, यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वी हैव गॉट द वेरी फर्स्ट टाइप दैट इज कंजुगल और न्यूक्लियर फैमिली। यूजुअली इन योर पेपर द वर्ड कंजुगल इज यूज्ड एंड देन देयरफॉर वी सफर, वो पोलीगेमियस है, बिल्कुल पोलीगेमियस। जरूरी नहीं कि चार शादियां हो, तीन शादियां भी हो सकती हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको पोलीगेमियस कहेंगे। On the basis of individuals where there is husband, wife and their children, ठीक है, तो उसको हम न्यूक्लियर फैमिली या कंजुगल फैमिली कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली बेसिकली क्या होता है, हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है, दैट इज कंजुगल और न्यूक्लियर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली। यहाँ पर ये कंसेप्ट हमारे पाकिस्तानी जो लोग होते हैं वो इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। जॉइंट फैमिली इज बेसिकली हस्बैंड, वाइफ एंड देयर मैरिड एंड अनमैरिड चिल्ड्रन when they live in a particular locality sharing common interest, तो उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ उनके मैरिड और अनमैरिड चिल्ड्रन एक ही लोकेलिटी में, एक ही फैमिली में एक साथ रह रहे हो तो उनको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। एंड देन एक्सटेंडेड फैमिली क्या है, एक्सटेंडेड फैमिली व्हेन हस्बैंड वाइफ देयर मैरिड एंड अनमैरिड चिल्ड्रन अलोंग विद देयर अंकल्स, अंकल्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, व्हेन दे ऑल लिव लाइक पश्तून एंड बलोच सोसाइटीज आर यूजुअली एक्सटेंडेड। तो जब हम उनसे पूछते हैं सर आपकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है या एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है, सो दे यूजुअली टेल सर हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। जब हम उनसे पूछते हैं मूविंग टूवर्ड्स आमिर साले, वो पॉली एंट्री पॉलीगाइनी कुछ और चीज है, वो जब हम पॉलीगेमी को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मैरिज या मैरिज के टाइप्स में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी नीड टू क्लियर दिस एंड देन आई विल बी लेटिंग यू नो दैट। तो आई होप न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली इज क्लियर टू यू ऑल। हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, अनमैरिड चिल्ड्रन, व्हेन दे लिव इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, तो ये कंजुगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली से हम कहते हैं। फिर
दूसरा है हमारे पास जॉइंट फैमिली। इन जॉइंट फैमिली हस्बैंड वाइफ, their married and unmarried children, when they live in a particular area, particular at a particular time, that is known as joint family. Whereas extended family is where husband, wife, their children, whether they are married or unmarried, their grandparents, their grandchildren, and their uncles and all other siblings, when they live in a particular area, that is known as extended family. I hope it's clear on the basis of individual. Then on the basis of रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंसेंग्विन फैमिली को डिस्कस करते हैं। कंसेंग्विन फैमिली या फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो फैमिली होती है जिसमें एक इंसान पैदा होता है, जिसमें एक इंसान के पैदाइश होती है। दैट फैमिली इज नोन एज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन या कंसेंग्विन फैमिली जिसे हम कहते हैं। For example, I got birth in a particular family. That family is consanguine family for me, where I have got adoption, where I have got my birth. ठीक है, तो ये family of orientation है। And then the family where one gets married is usually known as family of procreation. For example, usually females they leave their family of orientation or consanguine families and they go to their in-laws, and the family of in-laws is the family of procreation. ठीक है, जो आपके इन-लॉज है आपके लिए, आपके इन-लॉज प्रोक्रिएशन है, और आपकी वाइफ के लिए उनका ये जो इन-लॉज है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। एंड देन ब्लेंडेड टाइप ऑफ फैमिलीज क्या होते हैं? ब्लेंडेड टाइप ऑफ फैमिलीज यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमने ऊपर एक्सटेंडेड फैमिलीज में पढ़े, जिसमें क्रॉस कजन मैरिजेस होती है, जो एक ही फैमिली में रह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो फैमिली हो जाती है वो ब्लेंड कर जाती है, आपस में मिक्सअप हो जाती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप वो एक ही फैमिली में चुन के रह रहे हैं, और एक कहीं उनका जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है वो दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं। So therefore we call them blended family. On the basis of relationship, सबसे पहले यह है कि जिस फैमिली में आप पैदा होते हैं, ठीक है, जिस फैमिली में आप पैदा होते हैं वो आपके लिए आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहलाती है, कंसेंग्विन फैमिली कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप जिस घर में पैदा हुए, आपके जो बहन भाई हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है, जहां पर आपको पैदा हुए, जहां पर आपकी डेवलपमेंट की गई। फिर आपकी शादी कर दी जाती है, तो आपके जो इन लॉज होते हैं, जो आपका ससुराल होता है, वो ससुराल आपके लिए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहलाता है। और आपकी वाइफ के लिए जो आपका घर होता है, क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर आपके घर आई है, तो वो उसके लिए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हो जाता है। आपके लिए आपका ससुराल और आपकी वाइफ के लिए आपका जो आपका घर है, वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हो जाते हैं। वेयर एज ब्लेंडेड फैमिलीज में क्या होते हैं, ज्यादातर एक्सटेंडेड फैमिलीज में जब एक ही अंकल्स और कजन मैरिजेस हो रही होती है, जो एक ही घर में रहते हैं, एक साथ रह रहे होते हैं, तो उनके लिए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन दोनों एक ही होते हैं। तो इस किस्म के फैमिलीज को हम फिर कहते हैं ब्लेंडेड टाइप ऑफ फैमिलीज। नोमान से, आई होप यू गॉट इट। सदाम गुल। यस, कंsanguine एंड ओरिएंटेशंस आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ये यूजुअली थोड़ा सा इसमें जो फर्क है, कंsanguine में ब्लड रिलेटिव्स आ जाते हैं। ठीक है, कंसेंगुइन में ज्यादातर ब्लड रिलेटिव्स आ जाते हैं, ओरिएंटेशन में ज्यादातर वो एडॉप्टेशन की बुनियाद पर भी हो सकते हैं। खालिद एंड ज़ारा, आई होप यू बोथ गॉट इट। क्लियर टू यू ऑल? ब्लेंडेड फैमिली वेयर बोथ, ठीक है, जहां पर एक्सटेंडेड टाइप ऑफ फैमिलीज होती हैं, जहां पर कजन मैरिजेस होते हैं। ठीक है, जब वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है, वो चूंकि एक ही बड़े फैमिली में रह रहे होते हैं, और वही एक ही फैमिली एक शख्स के लिए ओरिएंटेशन है, दूसरे शख्स के लिए प्रोक्रिएशन है, जब वो एक ही फैमिली होती है तो उसको हम फिर ब्लेंडेड फैमिली कहते हैं। एंसेस्ट्री, जब आपकी लाइनेज, जब आपका शजरा नसब अगर आपके वालिद से मुंसलिक किया जाए, ठीक है, आपकी कास्ट आपसे वालिद से मुंसलिक की जाए, तो उसको हम पैट्रीलीनियल, ठीक है, फैमिली कहेंगे, और अगर वालदा से लिंक की जाए तो उसको हम मैट्रीलीनियल कहेंगे। आई होप यू ऑल गॉट इट। क्लियर टू यू ऑल?
Okay, so soon after 5 minutes, inshallah. For now, we अजमल खान आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल स्टार्ट में इसको ज्वाइन कीजिएगा. मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर आगे इसको आगे चलेंगे. ठीक है इंशाल्लाह. तो एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, so see you inshallah after 5 minutes. We shall have a break of 5 minutes and see you after 5 minutes.